इस 24 साल की लड़की ने 2 करोड़ 25 लाख रुपए कमाए अपने क्लोथिंग ब्रांड से एंड द फन फैक्ट इज शी जनरेटेड दिस इन 24 आवर्स. That just jumped to $6,000. 83 boxes come from FedEx today. What do you mean in 6 minutes? That's what's happening. एंड वो भी सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री में सेलिंग टी शर्ट्स एंड हुडीज. बस इतना ही नहीं, शी ऑल्सो वेंट ऑन शार्क टैंक एंड वहां के जजेस को एक्चुअली में शॉक कर दिया. I'm sorry, that was $260,000 in 24 hours. What? And the crazy part is she don't have a crazy social media following. She is not famous and एक अच्छी proper website भी नहीं है. So the question is how she is able to do it. And on top of that she is generating $3 million every single year. So the big question is how she is doing and how you can also start your own brand. So क्यों ना इसी बारे में बात करते हैं. So hey everyone, hope you guys are having a wonderful day. It's me Ashu this side. तो हम इस पूरी वीडियो में multiple topics cover करेंगे, starting from what exactly her business model is, then what's the secret strategy that she is using and जो उसके लिए अच्छे से काम भी कर रहा है, and at the end we are going to steal her strategy for your e-commerce business. तो पहले एक बार समझते हैं कि exactly sell क्या करी है. Just t-shirt, hoodies और sweatshirts? No, it's just not t-shirts और hoodies. It's related to a specific niche of people. मतलब ये एक specific demographic of people को ही cater कर रही है अपने clothes को sell करने के लिए. Specifically who are dealing with mental health और show interest in mental health. And that is actually very smart move because अगर आप WHO की रिपोर्ट जाके देखते हो, so according to 2019's data, 970 million people globally are facing some kind of mental disorder. So basically there is a market for it and people actually purchase those products which are actually relatable for them. And I'm pretty sure आपने बहुत सारे लोगों को इस टाइप के स्पेसिफिक क्लोथ्स या अपैरल्स पहनते हुए देखा होगा, चाहे वो आपको कोई फेमस इन्फ्लुएंसर हो या फिर कोई सेलिब्रिटी हो. बिकॉज आई पर्सनली फील दीज आर वेरी मिनिमलिस्टिक डिजाइन एंड एनीवन कैन वेयर इट. अब देखो ये बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव नीश है, तुम जानते हो, मैं जानता हूँ, बट व्हाट इज एग्जैक्टली शी इज डूइंग डिफरेंट कि उसको इतने ज्यादा सेल्स आ रहे हैं एंड नॉर्मली पीपल आर नॉट इवन मेकिंग $1,000 पर डे. सो अगर तुम इसके पेज पे जाके देखते हो तो ऐसा तो है नहीं कि उनके पास कोई क्रेजी ग्राफिक डिजाइनर की टीम है. नहीं, whatever she is printing on her t-shirts, hoodies और even sweatshirts वो आप easily Canva के help से बना सकते हैं. So what's the exact secret sauce जिससे इसको करोड़ों की सेल आ रही है? Well, it's actually very simple. She's not selling the product, she's dropping them. What I mean to say is वो एक specific date pick करती है and उस specific date को specific number of people के लिए limited amount of quantity sell करती है. And उस specific date से पहले वो पूरे हफ्ते अपने products की hype create करती है. But this is genuinely going to be the biggest launch that my business has ever had. So that people tends to join her waiting list to purchase their product on that specific date. Okay, अगर हमें इसको एक mathematical equation देनी हो, उतना अच्छा है नहीं मेरा math, but let's try to understand like this. You have low supply, then you create high demand for that product, and on top of that, you are creating hype for that specific product, and eventually in return, you are going to generate crazy amount of sales. And इसकी वजह से वो सबसे ज्यादा competitive niche में भी बहुत ज्यादा sales generate कर पा रही है. अब देखो, वो चाहे तो खुद को Etsy पे list कर सकती थी, क्योंकि Etsy पे ऐसे बहुत सारे products sell होते हैं, and Etsy पे globally बहुत ज्यादा traffic भी आता है. आप अभी जाके Etsy पे सर्च कर सकते हैं mental health t-shirt, hoodies और sweatshirt, you will find thousands of products. So it was very easy for Sophie to generate good amount of sales because वहाँ ज्यादा crowd है नहीं. Plus she actually don't need the traffic from Etsy because she is generating all the traffic from her all social media profiles and वो सारा का सारा traffic उसके Shopify store पे जाता है. अब देखो there is a good reason कि वो specifically अपने products को Etsy पे क्यों नहीं sell कर रही है and खुद का Shopify store बना रखा है. Specifically 3 good reason. First, competitive pricing. मतलब अगर आप इसके Shopify store पे जाते हैं and एक normal t-shirt का प्राइस देखते हैं, that is $40. Similarly, if you go on Etsy, a lot of people are selling t-shirts in the same niche for a very competitive pricing, जिसकी वजह से इसके margins बहुत thin हो जाते हैं. And होता क्या, अगर ये Etsy पे अपने product को $40 पे list करती, then immediately वहाँ पे जो भी buyers होते हैं वो compare करते हैं इसकी pricing को दूसरे t-shirts के साथ. And जहाँ पे चीजें सस्ती मिलती है, लोग immediately purchase करते हैं. So एक हाथ में जहाँ पे $40 का अपना खुद का product sell करने की कोशिश कर रही है, on the other hand जहाँ पे Etsy पे $10, $15 या फिर $18 के same t-shirts मिल जाते हैं. So I am pretty sure कोई भी इसके $40 के टी-शर्ट्स तो कभी नहीं खरीदता. So this is the benefit of you having your own website. वहाँ पे आप अपना खुद का competitive pricing डाल सकते हैं and there is no other sellers जिनके साथ आपको compete करना है. And on top of that, अगर आप अपना सारा का सारा traffic social media handle से अपने website पे भेज रहे, that means आपने already अपने audience के साथ trust and authority build कर रखा है. So at the end they are not concerned about the pricing. उनको फर्क नहीं पड़ता कि आप $40 का बेच रहे हैं या फिर $100 का बेच रहे हैं. They are actually very loyal to you. So the whole customer journey is very easy. Social media से वो आपकी वेबसाइट पे आते हैं, 2 बार क्लिक करना होता है एंड इंस्टेंटली परचेज हो जाता है. नंबर 2, दैट इज एक्चुअली कोरिलेटेड विद द फर्स्ट वन, दैट इज हायर प्रॉफिट मार्जिन्स. वेल ऑब्वियसली अगर आपके पास खुद की वेबसाइट है तो आप अपने हिसाब से कोई भी प्राइसिंग पे अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं. एंड व्हेन इट कम्स टू Etsy, वहां पे उनका प्लेटफॉर्म फीस होता है अप्रोक्सीमेटली 6% एंड देन लिस्टिंग फीस होता है एंड उसके बाद प्रोसेसिंग फीस. देयर इज अ लॉट ऑफ फीस इन्वॉल्व एंड उसकी वजह से वहां पे प्रॉफिट मार्जिन्स बहुत कम बचते हैं. सो सोच के देखो, जो इंसान $10 का टी शर्ट बेच रहा है एक्चुअली उनके जेब में कितना ही आ रहा होगा.
क्योंकि प्रोडक्ट एंड प्रिंटिंग कॉस्ट भी होता है। एंड इस चीज का भी डर हमेशा आपके पास रहेगा कि एचसी आपका अकाउंट कभी भी सस्पेंड कर सकता है। मतलब अगर आपने कोई स्पेसिफिक कीवर्ड भी कॉपी कर लिया, अपने टी शर्ट पे पेस्ट कर दिया, देन देयर इज गुड चांसेस कि वो कॉपीराइट की वजह से आपका अकाउंट बिना बताए सस्पेंड कर देगा। एंड इसी से रिलेटेड हमारा थर्ड पॉइंट है, दैट इज यू हैव द फुल कंट्रोल इफ यू हैव योर ओन वेबसाइट। सो शॉपिफाई पे आप अपने हिसाब से चीजें चेंज कर सकते हैं, अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, अपने हिसाब से प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं, एंड किसी भी चीज के एडिशनल पैसे नहीं देने पड़ेंगे। सिर्फ एक मंथली फीस होता है शॉपिफाई का, दैट यू हैव टू डू, एंड एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट। अब देखो, ऐसा नहीं है कि आपको एचसी पे कभी भी सक्सेस रेट नहीं मिलेगा। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर डूइंग दैट एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर डूइंग लिविंग आउट ऑफ इट। बट द थिंग इज, ये कुछ रीजन है जिनकी वजह से लॉन्ग टर्म में एचसी या कोई भी मार्केट प्लेस पे काम करने में at the end आपका ही घाटा होगा। So having your own professional website for your e-commerce store is actually going to be profitable for your business. And if you don't know social media की audience use करके वहां से अपने business के लिए traffic कैसे ला सकते हैं अपने store पे, so don't worry, I will share you some tips as well. So अगर आपका e-commerce business है and you're thinking to build your own website, then Shopify is by far the best platform out there for your business. Shopify multiple plan offer करता है and basic वाले plan से भी आपका काम easily हो जाएगा। That is for $29, approximately 1900 or 2100 rupees। आप Shopify पे sign up करके इजीली कोई भी फ्री थीम के हेल्प से अपनी प्रोफेशनल वेबसाइट बना सकते हैं विद इन कपल ऑफ डेज। बाय द वे, अगर आप खुद का Shopify स्टोर बनाने का सोच रहे हैं, देन फील फ्री टू यूज द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। उससे क्या होगा, मैं अपने एडिटर्स को अच्छा पे कर पाऊंगा एंड आई कैन डिलीवर मोर कंटेंट लाइक दिस फॉर यू गाइस। मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स टॉक अबाउट हाउ यू कैन स्टार्ट दिस बिजनेस विद एज लो एज ₹0। तो अगर आप इसका इंस्टाग्राम अकाउंट जाके देखोगे, देन यू विल रियलाइज कि ये खुद के प्रोडक्ट्स पैक करती है, शिप करती है, बहुत बड़ा वेयर हाउस है, बट eventually you don't have to do everything like that। मतलब अगर आप एज ए बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, then you don't have to invest in all the warehouses, big inventories। आपको lowest risk possible में ये चीज स्टार्ट करनी है, because I am pretty sure आप नहीं चाहते कि आप 400-500 प्रोडक्ट्स अपने घर पे मंगा ले या फिर वेयर हाउस में मंगा ले एंड कोई खरीद ही नहीं रहा वो। So for beginners I will suggest you to use any print on demand supplier। पहले आपको ये देखना है कि आप इंटरनेशनल मार्केट को केटर करने का सोच रहे हैं या फिर इंडियन मार्केट को। So basically print on demand supplier आपके लिए करेगा क्या, आपके डिजाइन्स को वो उनके टी शर्ट्स पे प्रिंट करके आपके कस्टमर तक उनका प्रोडक्ट पहुंचा देगा डायरेक्टली, एंड इवेंचुअली विद इन कपल ऑफ डेज आपके बैंक अकाउंट में आपके प्रॉफिट मार्जिन आ जाएंगे। तो लेट्स से यू आर सेलिंग एनी काइंड ऑफ हुडीज एंड उसके ऊपर एक स्पेसिफिक डिजाइन है, आपने डिजाइन दे दिया प्रिंट ऑन डिमांड सप्लायर को एंड वो लोग आपको एक स्पेसिफिक हुडीज ₹450 में दे रहे हैं। देन यू आर गोइंग टू सेल दैट हुडी फॉर ₹1000 एंड इवेंचुअली जब भी कोई ऑर्डर आता है तो वो लोग डायरेक्टली उस प्रोडक्ट को कस्टमर को शिप कर देंगे एंड जो बाकी का ₹500 है वो आपका प्रॉफिट मार्जिन होगा। सो आपको ये बात अच्छे से समझ लेना है कि आपको इंटरनेशनल मार्केट में प्रिंट ऑन डिमांड करना है या फिर इंडियन मार्केट में। दैट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन कि आपका जो सोशल मीडिया का ऑडियंस है उसका डेमोग्राफिक कौन सी कंट्री का है। अगर आप इंटरनेशनल मार्केट को केटर करना चाहते हैं देन हमारे पास बहुत ऑप्शन है, स्टार्टिंग फ्रॉम जिलाटो, प्रिंटफुल और प्रिंटिफाई। एंड अगर आप इंडियन मार्केट को केटर करना चाहते हैं देन हमारे पास बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ प्रिंट ऑन डिमांड सप्लायर है एंड उनमें से जो सबसे ज्यादा फेमस है दैट इज क्विकिंग। तो आप क्विकिंग पे जाके साइन अप कर सकते हैं, उनकी इन्वेंट्रीज चेक कर सकते हैं, प्राइसिंग चेक कर सकते हैं एंड उस हिसाब से अपना कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग ऐड कर सकते हैं ताकि आपको अच्छे खासे प्रॉफिट मार्जिन बचे। ओके, सो लेट्स सी हाउ यू कैन एक्चुअली गेट स्टार्टेड। हम इसके पेज में से कोई भी एक डिजाइन का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये वाला डिजाइन। देयर इज नथिंग कॉम्प्लेक्स इन दिस डिजाइन, सिंपल सा टेक्स्ट है, एक स्वेट शर्ट के ऊपर है एंड यू कैन लिटरली टाइप दिस फॉन्ट विद द हेल्प ऑफ कैनवा। एंड अगर आपको ये डिजाइन बहुत सिंपल लग रहा है देन आप चैट जीपीटी का यूज करके कोई भी मीनिंगफुल कोड जनरेट करवा सकते हैं एंड उन कोड का स्पेसिफिक डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कैनवा। मैं आपको एक डिजाइन क्रिएट करके दिखाता हूं। तो मैंने चैट जीपीटी के हेल्प से 10 फ्रेजेस जनरेट कर लिया। अब इनमें से कोई भी एक फ्रेज का हम डिजाइन बना सकते हैं। लेट्स टेक दिस फॉर एग्जांपल। एंड अगर मुझे डिजाइन क्रिएट करना है देन मैं सिंपली पहले अपना टेक्स्ट पेस्ट कर देता हूं यहाँ पे एंड यहाँ पे आपको बहुत सारे डिजाइन ऑप्शंस मिल जाएंगे। आप इसमें से कोई भी एक टेम्पलेट पिक कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो भी आपको अच्छा लगे। अगर यहाँ पे भी आपको समझ में नहीं आ रहा है देन आप स्पेसिफिक चीज को यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं मेंटल हेल्थ सर्च करता हूँ देन यहाँ पे हमारे पास मेंटल हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे पोस्टर्स आ जाते हैं। तो आप कोई भी एक टेम्पलेट यूज कर सकते हैं एंड उसके खाली टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं इस टेक्स्ट को डिजाइन करने की कोशिश करता हूँ हमारे फ्रेज के हिसाब से। ठीक है, तो मैंने बहुत ज़्यादा सिंपल डिज़ाइन ही बनाया, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। आप इजीली कैनवा से इस टाइप का डिज़ाइन बना सकते हैं एंड हम इस डिज़ाइन को यूज़ करेंगे अपने प्रिंट ऑन डिमांड सप्लायर पे ताकि हम अपने प्रोडक्ट्स पे इस डिज़ाइन को पेस्ट कर सकें। एग्जांपल के तौर पे अगर आपको टी शर्ट सेल करना है विद द हेल्प ऑफ क्विकिंग, तब आप देख सकते हैं यहाँ पे एक नॉर्मल टी शर्ट का प्राइस ₹160 है। सो वो सेम डिज़ाइन अगर मुझे क्विकिंग के कोई भी एक प्रोडक्ट पे अप्लाई करना है तो सिंपल है, आप कोई भी एक प्रोडक्ट पिक कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोडक्ट के वेराइटीज़ ऑफ कैटेगरीज हैं। जैसे अगर मुझे ये सिर्फ टी शर्ट पिक करना है जिसका कॉस्ट हमें ₹160 पड़ रहा है एंड अगर आपको सारे कॉस्ट ब्रेक डाउन करने हैं देन आप स्क्रॉल डाउन करके पूरा का पूरा कॉस्ट ब्रेक डाउन देख सकते हैं कि आपको कितने का पड़ेगा एंड प्रोडक्ट। मतलब अगर आपका डिज़ाइन का साइज A4 साइज का है देन प्रिंटिंग चार्जेस इतने हैं, शिपिंग चार्जेस इतने हैं, COD चार्जेस इतने हैं, GST इतना है,
देन टोटल कॉस्ट जो 160 रुपीज की टी शर्ट आपको मिल रही है उसका टोटल कॉस्ट ये लोग आपको 356 रुपीज का देंगे। सो इसलिए मैं बोलता हूँ कि इंडियन मार्केट में क्लोथिंग ब्रांड ऑपरेट करना बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव है। एंड अगर आपको स्टिल इंडियन ब्रांड में करना है देन आप साइन अप करने के बाद यहाँ पे डायरेक्टली अपने डिजाइन को अपलोड कर सकते हैं। तो आपको डायरेक्टली प्रोडक्ट्स में आके अपना खुद का प्रोडक्ट ऐड करना है। मेंस कैटेगरी से हमने क्लासिक टी शर्ट ली थी एंड देन हमें कलर ऑफ टी शर्ट पिक करना होता है, हमें इवेंचुअली हमारा डिज़ाइन ऐड करना होता है। हमने डिज़ाइन ऐड कर दिया एंड अगर आपका डिज़ाइन ट्रांसपेरेंट होगा तो बेटर होगा क्योंकि वो आपकी टी शर्ट के कलर के साथ मैच करना चाहिए। तो हम टी शर्ट का कलर ही वाइट कर देंगे, सिंपल। एंड आपको कौन कौन से साइजेस चाहिए वो आप पिक कर सकते हैं एंड देन सब कुछ फाइनलाइज होने के बाद आप सेव प्रोडक्ट पे क्लिक कर सकते हैं एंड इवेंचुअली आप जाके यहाँ पे देख सकते हैं माई प्रोडक्ट्स के। सो इस हिसाब से आप क्विकिंग के अंदर अपने डिजाइन्स को प्रोडक्ट पे पेस्ट कर सकते हैं। ये प्रोसेस इतना ईजी नहीं है जितना मैंने 30 सेकंड में समझाया, ये एक्चुअली में बहुत लंबा प्रोसेस है एंड मैंने इसके ऊपर भी ऑलरेडी एक फ्री कोर्स अपने चैनल के ऊपर बना रखा है। यू शुड डेफिनेटली गो एंड चेक दैट आउट, या तो वो यहाँ पे होगा या तो डिस्क्रिप्शन में होगा, आपको जरूर जाके देखना चाहिए। एंड जैसे आपके पास प्रोडक्ट रेडी हो आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर प्रोफेशनल फोटोग्राफ्स अपलोड करने उस प्रोडक्ट से रिलेटेड। सो द बेस्ट एडवाइस कि आप अपने प्रोडक्ट के मॉकअप्स जनरेट करवा ले। बहुत सारे एआई टूल्स आते हैं जिनकी हेल्प से आप आराम से प्रोफेशनल मॉकअप्स जनरेट करवा सकते हैं, या तो आप किसी माइक्रो इन्फ्लुएंसर को हायर कर सकते हैं XYZ प्राइसेस पे एंड देन वो आपके लिए प्रोफेशनल वीडियोस भी बना सकते हैं, प्रोफेशनल फोटोग्राफ्स भी बना सकते हैं एंड इवेंचुअली यू कैन यूज दैट फॉर मार्केटिंग एज वेल। अब देखो आपने वेबसाइट बना लिया, डिजाइन बना लिया, एक प्रिंट ऑन डिमांड सप्लायर भी ढूंढ लिया, बट द मेन क्वेश्चन इज हाउ यू आर गोइंग टू मेक मनी आउट ऑफ इट एंड हियर इज द फन पार्ट वेयर वी आर गोइंग टू यूज सोशल मीडिया फॉर दिस। अब देखो हमें इस बात को तो समझना पड़ेगा कि शार्क टैंक वाली दीदी ने रैंडम पोस्ट नहीं किए थे अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे। एवरी सिंगल पोस्ट वाज स्ट्रेटेजिकली पोस्टेड एंड हर पोस्ट के हेल्प से वो एक हाइप क्रिएट कर रही थी अपने नेक्स्ट ड्रॉप के लिए। सो पहले वो प्रोफेशनल कंटेंट क्रिएट कर रही है इन द फॉर्मेट ऑफ रील्स एंड हर एक रील्स के अंदर अपने प्रोडक्ट शोकेस कर रही है विच आर रिलेटेड टू मेंटल वेलनेस, जहां पे वो एक स्पेसिफिक डेमोग्राफिक ऑफ पीपल को केटर कर रही है एंड देन शी इज क्रिएटिंग द हाइप अबाउट हर प्रोडक्ट्स दैट शी इज गोइंग टू रिलीज द ड्रॉप ऑन ए स्पेसिफिक डेट एंड उस स्पेसिफिक डेट को स्पेसिफिक आवर के लिए उसकी वेबसाइट ओपन होगी जहां पे लोग जाके प्रोडक्ट्स को परचेज कर सकते हैं एंड ऑब्वियसली प्रोडक्ट की क्वांटिटी हमेशा लिमिटेड ही रहती है एंड इवेंचुअली दिस इज हाउ शी जनरेटेड 2.2 crores ऑफ सेल्स और आई कैन से $260,000 ऑफ सेल्स विद जस्ट वन सिंगल ड्रॉप। एंड ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो एक्चुअली में ये ड्रॉप वाला मेथड यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल इफ यू डोंट नो, स्टारबक्स ने भी ये चीज पहले ट्राई कर रखा है, इवन Amazon ने भी। तो पॉइंट ये, अगर आपके पास लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं देन वो एक्चुअली में स्केर्सिटी क्रिएट करता है आपके ऑडियंस के अराउंड, क्योंकि आप ह्यूमन साइकोलॉजी समझने की कोशिश करोगे तो एज ए ह्यूमन बीइंग हमें लिमिटेड एडिशन वाली चीजें पसंद है। जॉर्डन के शूज महंगे क्यों है? क्योंकि वो लिमिटेड एडिशन है, क्योंकि वो बहुत कम मिलते हैं एंड इवेंचुअली उनकी वैल्यू ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ती है एंड इवेंचुअली ये एक फोमो क्रिएट करता है उस स्पेसिफिक कल्ट फैन बेस के अंदर। अगर मैंने ये प्रोडक्ट परचेज नहीं किया देन आई विल फील लेफ्ट आउट फ्रॉम द कम्युनिटी एंड यू कैन से कम्युनिटी ऑफ एनीथिंग। इट कैन बी स्नीकर हेड्स, इट कैन बी एप्पल फैन और इन दिस केस उसके खुद के इंस्टाग्राम ऑडियंस। तो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग पार्ट यही होता है कि हाउ टू ब्रिंग ट्रैफिक फ्रॉम देयर सोशल मीडिया। अगर आप आउट ऑफ इंडिया रहते हैं देन मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक इज रेडबबल या फिर एथसी पे जाके साइन अप कर देते हैं, प्रोडक्ट लिस्ट कर देते हैं एंड इवेंचुअली वी विल गेट सेल्स। नहीं, ऐसा नहीं होता। उन मार्केट प्लेसेस पे भी बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन एंड सर्च पेज के फर्स्ट टॉप रिजल्ट्स में आने में बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो टेक्निकली ड्राइविंग ट्रैफिक फ्रॉम सोशल मीडिया इज कंपैरेटिवली इजी कि हम वहां पे जाके रैंक करें और एसईओ खेलें, नहीं। सो द फन पार्ट इज, अगर आप उसका इंस्टाग्राम पेज देखते हैं एंड बिल्कुल बॉटम तक जाते हैं एंड देखते हैं कि वो पहले कैसे किस टाइप के पोस्ट किया करती थी, देन यू विल अंडरस्टैंड कि पहले ये बस एक थीम पेज था जहां पे मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल कोट शेयर किए जाते थे मेंटल वेलनेस से रिलेटेड एंड उस टाइप का कंटेंट बनाना बहुत ज्यादा इजी है विद द हेल्प ऑफ कैनवा। इट्स जस्ट दैट यू हैव टू पोस्ट दोस काइंड ऑफ कंटेंट ऑन ए रेगुलर पीरियड ऑफ टाइम एंड कंसिस्टेंटली ऑन इंस्टाग्राम। मतलब दिन के 3 पीसेस ऑफ कंटेंट, महीने के 90 पीसेस ऑफ कंटेंट एंड उन 90 पीसेस ऑफ कंटेंट में अगर आप 60 पीसेस ऑफ रील्स डाल रहे हैं, इवेंचुअली योर चांसेस ऑफ गेटिंग वायरल विल गेट मोर। एंड ये सेम चीज कम से कम 90 दिन तक करके देखो, यू विल इवेंचुअली हैव योर ओन ऑडियंस बेस एंड आई एम प्रीटी श्योर a lot of people fail in this journey just because they are not consistent। 90 दिन तक सेम बोरिंग काम करना इम्पॉसिबल लगता है, बट देयर आर गुड एग्जांपल हु आर डूइंग इट। सो अगर वो लोग कर सकते हैं देन तुम क्यों नहीं? एंड इस टाइप का कंटेंट क्रिएट करने के लिए आपको हर बार फिजिकली इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। Eventually, when the business is going good, you can outsource all the social media content to somebody else. And eventually, they will grow the account for you and your job is just to focus on your main business. So I guess आपको पूरा रोड मैप समझ में आ गया होगा कि आपको एक्चुअली में करना क्या है, स्टार्ट कैसे करना है, एंड तक कैसे जाना है एंड कौन कौन सी चीजें आपको नहीं करनी है। So if you want to learn more about organic social media marketing,
देन मैंने उसके ऊपर भी वीडियो बना रखी है, यू शुड डेफिनेटली गो एंड चेक दैट आउट एज वेल। मेरे चैनल पे सब कुछ है इफ यू वांट टू ग्रो योर ओन ऑनलाइन बिजनेस। तो उसकी वीडियो का लिंक या तो यहाँ होना चाहिए या तो डिस्क्रिप्शन में होना चाहिए, तो आपको वो जाके जरूर देखना चाहिए। सो आई गेस दैट विल बी इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको 1% भी ये वीडियो अच्छी लगी है, डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल एंड दैट विल बी इट। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इफ यू लाइक दिस वीडियो जस्ट गिव इट अ बिग फैट थम्स अप। इट्स मी आशु दिस साइड एंड आई एम signing off. Cheers.